Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life. I'm Dr. Muhammad Yousaf. So today we are going to discuss, start the female reproductive system. And before that, one ayah from Holy Quran. I have selected ayah from Surah Al-Ankabut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो लोग हमारी राह में तकलीफ़ें उठाएं, जुहद करें, कोशिश करें, वल्लदीन जाहदू, जो जुहद करें, कोशिश करें, तकलीफ़ें उठाएं, फ़ीना, हमारे रास्ते में, लनहदियन्नहुम, हम ज़रूर बेज़रूर उनको हदायत देंगे। सुबुलना, हदायत, हमारे हदायत के रास्ते खोलेंगे। सबील की जमा सुबुल होती है, हदायत की राहें उनके लिए खोल देंगे। जो क्या करेंगे, हमारे लिए, हमारी लिए लोग जो जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, हम उन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखला देंगे। वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद ज़मानत है हदायत पाने की। ये आयत बता रही है कि जो लोग अल्लाह के लिए जोद में, कोशिश में लगे होते हैं, वो क्या कोशिश होगी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अल्लाह को और किस जोद की ज़रूरत है, दीन की मेहनत क्या है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। और अल्लाह का वादा है कि हम इस बंदे को ज़रूर हदायत देंगे जो लोगों पर मेहनत करके, जद्दोजहद करके उनको अल्लाह की तरफ बुलाता है और तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है। तो ये की है, दिस इज़ की, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे आप, अल्लाह आपको हदायत दे देगा। लोगों को तो देना ना देना अल्लाह की वो निज़ाम है अपना, नबियों ने बनाया, बुलाया लोगों को, और कुछ लोग हदायत पर आए ना आए, वो अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा, जद्दोजहद करेगा, अल्लाह इसको ज़रूर हदायत देंगे। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। सो वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ फीमेल. These functions we discuss under 4 headings, 4 phases में हम डिस्कस करते हैं। वन तो वही है, प्रिपरेशन ऑफ द फीमेल बॉडी फॉर कंसेप्शन। रिप्रोडक्शन फंक्शन है, मेल में तो गेमीटोजेनेसिस होती है, उसकी कंट्रोल है, भी डिस्कस कर लिया है। देन दिस मेल गैमीट इज ट्रांसमिटेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड देन द न्यू ह्यूमन बीइंग डेवलप्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. So first part of the female reproductive physiology which we can discuss is the preparation of the female body for this purpose, for the conception and pregnancy gestation. उसके लिए जो preparation है, that is the first topic of discussion for female reproductive physiology. Then when this actual pregnancy occur, gestation, that is the another phase of female reproductive physiology. उसमें changes आती हैं, physiological changes आती हैं, we will discuss that. Pregnancy. And pregnancy के बाद then the delivery process itself, reproductive function, especially important function at the time of delivery of the baby, which we term as the labor. So labor process की physiology we will discuss. And then labor के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ. This is the female reproductive physiology में lactation, the newborn baby की early nutrition के लिए अल्लाह पाक ने जो female system में lactation वाला process रखा हुआ है. So under these 4 headings we will discuss. So we are going to start this first part, that is the preparation of the female body for conception. उसको हम पहले discuss करेंगे. Brief physiological anatomy, we just name the organs involved, that is the main structures involved. Ovaries, gonads, so यही है. Ovum will be produced, gamete will be produced, hormones will be produced here. So ovaries. Then there are tubes through which this ovum will travel, fertilized ovum, or without fertilization it will travel to the interior of the uterus, and वहाँ पे आएगा. Then the uterus itself, उसकी different physiology हम discuss करेंगे. And then vagina, these are the different structures in the reproductive female physiology जो हम discuss करेंगे. The female reproductive organs ये diagram में हम देख लेंगे. These are the 2 ovaries, and these are the fallopian tubes. They are opening into the uterine cavity. This is the cavity of the uterus. This is wall of the uterus. Myometrium इसको कहते हैं. And then the cervix of the uterus, neck of the uterus, and then the vagina.
and in female ये वही उसका structure है, ovaries and uterus and this is the urinary bladder and the arrangement is that is the vagina. Female reproductive organs. We have named them and you know all the structures very well. Again, this is the ovaries is diagram. Ovary में different, we are going to discuss these changes taking place in the ovarian cycle के नाम से हम discuss करेंगे. And ovum then enters into this fimbriated end of the fallopian tube and it may travel to the interior and fertilize हो जाए तो यहाँ पे implant होगा, pregnancy होगी और uterine के endometrium, internal lining of the endometrium, internal lining of the uterus को हम endometrium कहते हैं. And then the vagina develop करेगा, then delivery will take place. हम इसको देखेंगे. Female में there are gross drastic cyclic variations which are almost repeated every month. And these drastic changes in the hormonal production and their effects on the body. हार्मोन भी प्रोड्यूस में ड्रास्टिक चेंजेस होंगी एंड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इफेक्ट होंगे. इनको कलेक्टिवली वी टर्म एज द फीमेल मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल और सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल. मुख्तलिफ नाम है. इट इज़ द मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल. ये अच्छा नाम है, रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट इज. और इसमें होता क्या है, दी साइक्लिक वेरिएशंस इन हार्मोन्स एंड इट्स इफेक्ट्स, उनका काम क्या है, दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फीमेल बॉडी फॉर जेस्टेशन फॉर प्रेगनेंसी. इसके लिए प्रिपरेशन के लिए gametogenesis is taking place. One mature ovum is formed every month. हर महीने में एक मेच्योर ओवम बनता है. तो अ सिंगल ओवम इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ओवरीज. मेच्योर ओवम, मेच्योरिटी उसको देखेंगे मेच्योरेशन कैसे होती है. तो ओवम इज शेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी अराउंड द फ्लोपियन ट्यूब. वहाँ पे होता है फर्टिलाइज, फिर उसके इट एंटर इन द फ्लोपियन ट्यूब. एक ओवम एवरी मंथ निकलता है and the ovum then passes into the fallopian tube, and if fertilize हो गया है so it will travel along the fallopian tube and it will implant in the fallopian tube fertilized ovum. So during this process, monthly cycle में hormonal changes, they will prepare the endometrium for this implantation. Every month ही होता है. Every month this endometrium is prepared for the implantation. अगर fertilization हो गया it will implant. अगर fertilization नहीं हुए तो cycle will be repeated again. Every month ये repeat होगा. This is known as the monthly reproductive cycle. If no fertilization, then of course menstruation will occur. Changes taking place inside the uterus. They will restart again after menstruation. Menstruation हो गई दोबारा शुरू हो जाएगी. We are going to discuss those changes. If fertilization हो जाती है, then the uterus has been prepared during this process. Fertilization में time लगेगा, हम देखेंगे timings उनकी देखेंगे. Uterus endometrium is well prepared for the implantation of this fertilized ovum and for new phase of the female reproductive physiology, that is the physiology of reproduction. We will discuss it. Development of the fetus, placenta and fetal membrane, all that will occur if fertilization occurs and implantation occurs in the uterus. Now the ovum in the ovaries, they are present in primordial follicle present in the ovaries. How these primordial follicles are formed? Gamete बनने के लिए जो cell है, it is present in the ovaries in the form of primordial follicle, primordial ovum, और उसके surrounding granulosa cells हैं तो उसको primordial follicle कहते हैं. These in fetal life, ovaries are, जब ovary develop कर रहे हैं, they are covered. Germinal epithelium is on the surface of the developing ovaries during fetal life. And होता क्या है कि primordial ova, they differentiate on the germinal epithelium. Male में germinal epithelium penetrates and it lines the seminiferous tubule. इसमें germinal epithelial cells which are destined, which will form the ovum, they will migrate, they differentiate and migrate into the cortex of the ovary, substance of the ovary, deeper part of the ovary में surface से migrate करके उसके अंदर जाएंगे. And each ovum in the cortex, in the substance of the ovaries, it collects around it a single layer of the granulosa cells from the ovarian stroma. Ovaries के अंदर वाले cells उसके
डिफ्रेंशिएट होके अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स उनको कहते हैं. ओवम जो सरफेस से माइग्रेट करके आएगा, ग्रेनुलोजा सेल्स सराउंडिंग अ सिंगल लेयर. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमोडियल फॉलिकल. ये प्राइमोडियल फॉलिकल कब डेवलप हो रहे हैं? फीटल लाइफ में काम हो रहा है. ये प्राइमोडियल फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं फीटल लाइफ में. प्राइमोडियल ओवम सराउंडेड बाय दिस सिंगल लेयर ऑफ द ग्रेनुलोजा सेल इज नोन एज प्राइमोडियल फॉलिकल. ये फीटल लाइफ में डेवलप हो रहे हैं. नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल इन द 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फीटल लाइफ में 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे नंबर ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल जो दोनों ओवरीज में बने हैं, दे आर अबाउट 6 मिलियन. 6 मिलियन. लेकिन एट बर्थ most of those mean 5 million they degenerate. बनते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता अभी डिलीवरी तक अगले ये 30 वीक्स के बाद नेक्स्ट 10 वीक्स में, 10 वीक्स है, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है. 30th वीक पे 6 मिलियन है, लेकिन अगले 10 वीक्स में दे डिजेनरेट. और फाइनली जब बेबी पैदा होता है, ओनली 1 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन अ न्यूबॉर्न फीमेल बेबी. फीमेल बच्ची जो पैदा हुई है उनकी दोनों ओवरीज में 1 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं. दोज जर्मिनल सेल्स जो हैं वो सेल्स हैं विच कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. वो फिक्स नंबर ऑफ द सेल्स हैं. दीज प्राइमोडियल ओवा दे डू नॉट प्रोलिफरेट. जैसे हमने स्पर्मेटोगोनिया की प्रोलिफरेशन देखी थी, नो, देयर इज नो प्रोलिफरेशन ऑफ दीज प्राइमोडियल ओवा. ये प्रोलिफरेट नहीं कर सकते. इनफैक्ट their meiotic division, reduction division starts in the intrauterine life, लेकिन वो अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, उधर रुकी रहती है. फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, मियाटिक डिवीजन का फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ रुकी रहती है. प्रोफेज उसको कहते हैं. प्रोफेज ऑफ दी फर्स्ट मियाटिक डिवीजन में वो अरेस्ट हो जाती है. तो इसका मतलब है दे हैव स्टार्टेड द मियोसिस, दे कैन नॉट गो इनटू द माइटोसिस. नॉर्मल जो हम स्पर्मेटोगोनिया प्रोलिफरेट करके और स्पर्मेटोगोनिया बनाए, वो दैट कैन ओनली गो टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ओव गेमीट बन सकता है. सो एट बर्थ दे सो दिस फिक्स नंबर ऑफ सेल इज ओनली 1 मिलियन. अगली बात, एट प्यूबर्टी तक देयर इज नो एक्टिविटी इन द ओवरीज. 1 मिलियन थे, उनमें से और डिजेनरेट कर जाते हैं, 2/3 उसके डिजेनरेट कर गए. एट द टाइम 1 मिलियन 10 लाख, ये 1 लाख 3 लाख रह गए हैं. 10 लाख में से 3 लाख या 4 लाख रह गए हैं. 2/3 से ज़्यादा डिजेनरेट कर गए, हाफ से एटलीस्ट ज़्यादा डिजेनरेट कर गए. तो एट प्यूबर्टी ओनली 300,000, दैट इज 3 lakhs और 400,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर लेफ्ट. ये रह गए हैं जिन पे ओवम बन सकता है, पॉसिबिलिटी है. और every month during reproductive life, every month out of these, अगर हर महीने में इनमें से ओवम निकलना शुरू करे, होता क्या है, about 20, 25 or 30 primordial follicle they start developing to form the mature ovum. लेकिन होता क्या है, one follicle matures enough to form the ovum and rest of the out of those 30 they degenerate. एक ओवम बड़ा होता है. पहले हमने कहा था ना, a single ovum is mature ovum is shed. तो एक फॉलिकल इतना बड़ा होता है कि मेच्योर ओवम गेमीट बना के वो फेंकता है, बाकी डिजेनरेट कर जाते हैं. एवरी मंथ देयर डिजेनरेशन ऑफ फर्दर 20, 30, 40 प्राइमोडियल फॉलिकल्स. अगर इसको छोड़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव लाइफ में मैक्सिमम अगर प्रेगनेंसी वगैरह ना हो, एवरी मंथ होता रहे, अबाउट 400 मंथ्स में ये काम होता रहता है. अगर पॉसिबिलिटी है 400 प्राइमोडियल फॉलिकल मे ओवुलेट, दिस इज मे ओवुलेट. ये 400 मंथ में अबाउट डिवाइड करें ना 12 पर 12 3 आर 36 एंड 12 3 33 ईयर्स ऑलमोस्ट. 33 ईयर्स तक ये पॉसिबल है, एवरी मंथ ये होगा. लेकिन होगा क्या, सो सेवरल फॉलिकल्स आर डिजेनरेटेड एवरी मंथ. तो ये तो नंबर फिक्स है. So in these 33 years, all these follicles, they either ovulate or they degenerate. So there is no
availability of the primordial follicle, there is no cell available for the formation of gamete or ovum, then there is no reproduction possible. So then the rest degenerate. ये जो डिजनरेट हो रहे हैं उसको एट्रीजिया ऑफ द फॉलिकल कहते हैं. एक ओवम मैच्योर होता है, बाकी जो डिजनरेट करते हैं दैट इज टर्म्ड एज एट्रीजिया ऑफ द फॉलिकल. वो एट्रेटिक हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं. और फिर डिप्लीशन ऑफ ऑल द फॉलिकल, जब ये 300,000 सारे ख़त्म हो जाएं इन दिस प्रोसेस, तो देन मीनोपॉज विल स्टार्ट. ये फॉलिकल से ही गमीट भी बनता है, इन्हीं फॉलिकल से ही हार्मोन पैदा होती है. ईस्ट्रोजन भी, प्रोजेस्टेरॉन भी इसी फॉलिकल से पैदा होती है. इसकी ग्रोथ पर हार्मोन पैदा होती है. तो जब ये नहीं होंगे तो देन हार्मोन भी पैदा नहीं होगी, गमीट भी नहीं होगी. दैट इज द मीनोपॉज, फर्टिलिटी पीरियड एंड्स. प्राइमोर्डियल फॉलिकल, द ग्रैनुलोसा सेल्स, ये जब बनता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ग्रैनुलोसा सेल जो इसके गिर्द बने हैं ओवरीज से, दे प्रोड्यूस OMIF, oocyte maturation inhibitory factor. ये क्या है? ये ग्रेनुलोसा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस ओवम पर इफेक्ट करने के लिए. वो करता क्या है? मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर. दिस कीप्स द ओवम इन प्राइमोर्डियल स्टेट. मियोटिक डिवीजन को कंटिन्यू नहीं होने देती, उसको रोक के रखती है. इट इनहिबिट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन. ये फर्स्ट में ये उसको रोक देता है. तो OMIF, ओवोसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर, ग्रेनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है. इट कीप्स द इट इनटू प्राइमोर्डियल स्टेट. क्या मतलब? इट इज सस्पेंडेड इन द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे बस वो अरेस्ट है. इट विल कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज शेड. जब ओव्यूलेशन होगी तब ये स्टार्ट होगा ये प्रोसेस. ये जब इन इससे दूर जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद ये उससे दूर जाएगा ना, तो सस्पेंडेड इन द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. और फिर वो तब होगा जब वो शेड हो जाएगा, तो ओनली देन इट विल वो जो डिवीजन है, मियोटिक, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन विल कंप्लीट एंड वन गमीट विल बी फाउंड. रेस्ट ऑफ द 4 सेल बनते हैं, लेकिन 3 तो वो ओवम नहीं बनते, एक बड़ा ओवम बनता है. उनको पोलर बॉडीज कहते हैं, आपको पता है, शेडिंग ऑफ द पोलर बॉडीज कहते हैं. तो फीमेल हार्मोनल सिस्टम इसको जो कंट्रोल करता है वो उसी तरह का सिस्टम है जो हमने मेल में देखा. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड द गोनेड्स. दैट इज द हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन या LH रिलीजिंग हार्मोन उसको कह लें. गोनाडोट्रोफिक दोनों हार्मोन रिलीज करता है. एंड देन दी पिट्यूटरी के जो हार्मोन है FSH LH, मेल की तरह यहाँ पे भी है. मेल में ओवरी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन थी, और यहाँ पे ओवरी से बोथ 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो द हार्मोनल सिस्टम ये है. ड्रास्टिक वेरिएशंस इन द फीमेल हार्मोनल सिस्टम occurs which results into that monthly cycle. ये मेल में इतनी ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं होती टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में. ये ड्रास्टिक साइक्लिक वेरिएशन इन द फीमेल हार्मोन ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ द मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल अकर, और उसकी इफेक्ट्स भी होते हैं. ये डायग्राम इज शोइंग यू द ड्रास्टिक वेरिएशन इन द हार्मोन्स इन द फीमेल. ये नीचे वाला ग्राफ जो है, इट इज शोइंग यू द ड्रास्टिक वेरिएशन इन FSH एंड LH. यू सी वेरी लो लेवल ऑफ FSH एंड LH. ये मंथली साइकिल 28 डेज साइकिल का एवरेज इज 28 डेज साइकिल, जिसको मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं. 28 डेज का होता है आमतौर पर, लंबा भी हो सकता है, छोटा, एवरेज 28 डेज का होता है. तो 28 डेज का एवरेज साइकिल हम दे, उसमें FSH का लेवल यू सी हेयर एंड देन यू सी LH लेवल नियर 12 डेज पे ये इतना अचानक इंक्रीज किया, फिर इट इज रिड्यूस एंड अगेन बेजल लेवल पे आ जाता है. और इसी तरह FH का लेवल भी इसी तरह वेरिएशन अकर. लेकिन वेरी ड्रास्टिक वेरिएशन आप इन 2 हार्मोन के देखें, ऊपर वाला ग्राफ शो कर रहा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का. देखिए ना, ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान देयर इज नो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वेरी लो लेवल, ना होने के बराबर. लेकिन मेंस्ट्रुएशन के बाद ईस्ट्रोजन इज इंक्रीजिंग. प्रोजेस्टेरॉन वाला ब्लू ग्राफ जो है प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज नहीं कर रहा. ओव्यूलेशन होने तक पहली फेज में, पहले हाफ ऑफ द साइकिल में देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, ओनली ईस्ट्रोजन इज बीइंग सिक्रीटेड. और ईस्ट्रोजन भी फिर थोड़ा कम हो गया, फिर अगेन सेकंड हाफ में इट अगेन इंक्रीज करता है. और सेकंड हाफ में प्रोजेस्टेरॉन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. और फिर दे बोथ फॉल टुवर्ड द एंड ऑफ दिस 28 डेज पीरियड, फिर उसी जगह पे आ जाते हैं.
So there are drastic variation in the female hormones which results into the female monthly cycle. इसको हम monthly cycle इन्हीं वजह से मंथली साइकिल किस वजह से दीज ड्रास्टिक चेंजेस इन दी ओवेरियन हार्मोन्स एंड दी ऑफ कोर्स द पिट्यूटरी हार्मोन दोनों फॉलो करते हैं एक दूसरे को तो दैट रिजल्ट्स इनटू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और दी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं सो मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल मंथली रिदमिक रिदम है ना that is regular interval पे repeat हो रहा है rhythmic changes in the rates of the secretion of different hormone ग्राफ में हमने देखा and the corresponding changes in the female sexual organs हार्मोन भी चेंज होंगे और उनका इफेक्ट फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पर भी होगा स्पेशली इन द यूट्रस इन द वजाइना और इन इवन ऑन द ब्रेस्ट उन पे इफेक्ट होगा एंड कलेक्टिवली ऑल दीज चेंजेस आर नोन एज फीमेल सेक्सुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह लें कॉमन इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मेंस्ट्रुएशन को कहना चाहिए ना इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और फीमेल सेक्सुअल साइकिल इसको बोलना चाहिए एवरेज ड्यूरेशन जो हमने पिछली ग्राफ में भी देखा एवरेज ड्यूरेशन इज 28 डेज पे दिस साइकिल इज रिपीटेड फीमेल में जो साइकिल लेकिन इट मे रेंज साइकिल में भी short as only 20 days और it may be long as 45 days so abnormal length भी हो सकती है इससे भी आगे पीछे हो सकता है लेकिन आगे लिखा हुआ है abnormal cycle length कि too short cycle or too long cycle this will result into decreased fertility as well आमतौर पर उन लोगों में अगर फीमेल हार्मोनल सिस्टम अगर करेक्ट है तो अबाउट 1 month का साइकिल होता है 28 डेज का होता है 1 month 30 डेज का हो जाएगा लेकिन किसी में कम हो ज़्यादा हो फर्टाइल हो सकते हैं लेकिन फर्टिलिटी इज रिड्यूस विद द एबनॉर्मल लेंथ आइदर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग साइकिल रिजल्ट इनटू रिड्यूस फर्टिलिटी सो इफेक्ट्स ऑफ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन वही FSH-LH के जो काम है उसका इफेक्ट क्या होगा वी विल सी विदाउट LH FSH नो एक्टिविटी जैसे हमने मेल चाइल्ड में बात किया था जिसमें FSH-LH नहीं है देयर इज नो एक्टिविटी थ्रू आउट चाइल्डहुड फीमेल में भी एंड एट अबाउट 10 years ऑफ एज फीमेल के मेल में भी इसी तरह शुरू होता है लेकिन फीमेल में चूंकि वेरी प्रोमिनेंट चेंजेस वी डू ऑब्जर्व है सो दी अबाउट 10 years ऑफ एज LH एंड FSH स्टार्ट मैकेनिज्म वही है वो लिम्बिक सिस्टम का मेच्योरिटी और हाइपर सेंसिटिविटी हाइपोथैलेमस की कम होने की वजह से इट विल स्टार्ट नियर 10 years और ऑनसेट ऑफ मंथली साइकिल अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 11 years और 13 years फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर्स एट अबाउट एज ऑफ 13 years 14 years आगे पीछे भी हो सकता है 16 years up to 16 11 between 11 and 16 years इस पे होता है फर्स्ट मंथली साइकिल विल स्टार्ट एंड मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट इसको हम कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं मिनार्की दैट इज नोन एज 13 आमतौर पर एवरेज 13 years पे होती है इसको कहते हैं हम मिनार्की और यहाँ पे प्यूबर्टी वो रिप्रोडक्टिव लाइफ विल स्टार्ट एंड दी चेंजेस विल अकर विच अकर मेल की भी प्यूबर्टी हम देख फीमेल में भी इसी तरह प्यूबर्टी हो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हम मिनार्की कहते हैं आप हम जब क्लिनिकल क्लासेस में जाएंगे तो आप हिस्ट्री लेते हुए पूछेंगे मिनार्की क्या है व्हाट इज कब मेंसेस स्टार्ट हुए थे पहले किसी फीमेल को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे एग्जामिन कर रहे होंगे आप पूछते हो उसके तो ये टाइम 13 years पे आप एसेस करना चाहते हैं इसका हार्मोनल सिस्टम कैसा है अगर लेट किसी का 18 years पे हुआ समथिंग रॉन्ग और किसी का 10 years पे हो गया समथिंग रॉन्ग तो मिनार्की भी उसकी पूछी जाती है फीमेल मंथली साइकिल दिस साइकिल वी डिस्कस अंडर 2 headings एक तो साइकिल डिस्कस करते हैं चेंजेस एवरी मंथ देयर आर चेंजेस इन द ओवरीज फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग उसमें फॉलिकल ग्रोथ होती है ओवम बड़ा हो रहा है फॉलिकल ग्रो कर रहा होता है फॉलिकुलर फेज फिर ओवम लिबरेट होता है जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द दैट रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम सो ये ओवरीज में चेंजेस हो रही हैं इस सारे साइक्लिक वेरिएशन इन ओवरीज को हम उसको कहते हैं ओवेरियन साइकिल दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH-LH वो FSH-LH का लेवल जो हमने देखा था ना कम और फिर दरमियान में मिडिल ऑफ द साइकिल पे दोनों FSH-LH ज़्यादा होती हैं फिर कम हो जाती हैं उस वेरिएशन की वजह से ये जो चेंजेस इन द ओवरीज आ रही हैं इन सारी चेंजेस को कलेक्टिवली वी टर्म एज द ओवेरियन साइकिल
और दूसरा, इस साइकिल की वजह से एफएसएच ओवेरियन साइकिल में देयर आर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो हमने दूसरा ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ देखा था कि पहले हाफ में ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस और ओवुलेशन के बाद बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस। उनका इफेक्ट होगा ऑन द एंडोमेट्रियम, ऑन द यूट्रस। यूट्रस को की इंटरनल लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उनमें भी साइक्लिक वेरिएशंस होंगी, उसमें ग्रोथ होगी, और वो जो है कंप्राइजिंग ऑफ साइक्लिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड देयर। वो ओवेरियन साइकिल में ये दो हार्मोन पैदा हो रही हैं, वो यूट्रस पे जाके इफेक्ट कर रही हैं, और वो जो साइक्लिक वेरिएशन एवरी मंथ होती हैं उसको हम एंडोमेट्रियल साइकिल के नाम से डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम ये दोनों साइकिल अलग अलग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला पहले हम ओवेरियन साइकिल डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, और फिर आगे फिर एंडोमेट्रियल साइकिल डिस्कस करेंगे, और फिर सी यू इन नेक्स्ट एंड। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इसको रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट में शेयर करें, लोगों को बताएं। आई होप कि आपको फ़ायदा होगा, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा, तो लोगों को भी शेयर करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।